Hello my dear friends, I am Professor Wayan Khan and this is the part 7 of unit number 2 block diagram and signal flow graph of subject automatic control system. In last video we have studied the signal flow graph. We have started that signal flow graph and we have studied how to draw a signal flow graph from the system equations or from the linear algebraic equations. We have seen the transmission rule, multiplication rule, we have seen the addition rule of this signal flow graph algebra, and at the end we studied some numerical, and we have drawn the signal flow graph for given system equations. Now in today's video, in this video we are going to study the method of drawing signal flow graph from block diagrams, and this is the part which is very important as far as your syllabus is concerned, and therefore please pay attention. And before proceeding to that, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. Let us start. Now the definition of signal flow graph, you have already seen it. It is a graphical representation of algebraic equations, and it is similar to the block diagrams. The objective of signal flow graph is same as that of block diagram reduction, which is to obtain the transfer function of the entire system. We want to get the transfer function of the entire physical system, and that can be obtained by using the block diagram reduction as well as by using the signal flow graph. In signal flow graph there is absence of blocks, summing point, takeoff point. Therefore it is a easier way of finding, rather than saying easier, it is a simpler way of finding the transfer function of the system, and signal flow graph offers a much easier way to obtain the transfer function of the entire system. Okay, as stated earlier, in most of the cases signal flow graph are easier than block diagram reductions. Hence we need to know how to convert a block diagram to a signal flow graph. We should know how to convert a block diagram to a signal flow graph. Okay, now the method to convert this signal flow graph, to convert the block diagram into a signal flow graph is stated here, is given here. The various steps are written here on the screen. The first step is to represent all signals, variables, summing points and takeoff points of block diagram as nodes in signal. Now in last video we have studied what is the meaning of nodes, what is branch, what is gain of branch. So the total number of signals, total number of variables, total number of summing points and total number of takeoff points will be represented as नोड्स इन दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ. हमें क्या करना है, जितने भी सिग्नल रहेंगे, जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे x1, x2, y1, y2, जितने भी समिंग पॉइंट्स रहेंगे s1, s2, s3, जितने भी टेक ऑफ पॉइंट्स रहेंगे t1, t2, t3, ये सभी पॉइंट्स को एज ए नोड बोलकर हमें क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. ओके, देन रिप्रेजेंट द ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम एज ब्रांचेस इन सिग्नल फ्लो ग्राफ. जो भी ब्लॉक्स रहते हैं हमारे ब्लॉक डायग्राम में, उसको हम एज ए ब्रांच, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की मदद से क्या करेंगे, वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. देन रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन इनसाइड द ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम एज गेन्स ऑफ द ब्रांचेस इन SFG. जो भी ट्रांसफर फंक्शन इन ब्लॉक्स में रहेगा, फिर वो G1 ऑफ S रहने दो, G2 ऑफ S रहने दो, H1 ऑफ S रहने दो, H2 ऑफ S रहने दो, या जो भी रहेगा, जो भी ट्रांसफर फंक्शन इन ब्लॉक्स के अंदर रहेगा, दैट विल बी द गेन्स ऑफ द ब्रांचेस इन सिग्नल फ्लो ग्राफ. नाउ कनेक्ट द नोड्स एज पर द ब्लॉक डायग्राम. जैसा ब्लॉक डायग्राम में कनेक्शन है, जो ब्लॉक जिस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, जो समिंग पॉइंट जिस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, जिस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, इन सभी नोड्स को कनेक्ट करना है. ओके, एंड इफ देयर इज कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, जैसे कि दो समिंग पॉइंट्स रहेंगे, इन दोनों समिंग पॉइंट्स के बीच कनेक्शन है, दो
टेक ऑफ पॉइंट है, इन दोनों टेक ऑफ पॉइंट के बीच में कनेक्शन है, एक समिंग पॉइंट है, एक ब्लॉक है, इनके बीच में कनेक्शन है। तो ऐसे कनेक्शंस जिनके बीच में ब्लॉक्स नहीं हैं, ओके, इफ देयर इज कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स है यानी कि दो सिग्नल्स है, दो वेरिएबल्स है, दो समिंग पॉइंट्स है, दो टेक ऑफ पॉइंट्स है, इनके बीच में कोई भी ब्लॉक अगर प्रेजेंट नहीं है, देन रिप्रेजेंट द गेन ऑफ द ब्रांच एज यूनिटी। ऐसे दो नोड्स के बीच में जो गेन रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल दो समिंग पॉइंट्स है, S1 S2 समिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कोई भी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी इस ब्रांच का गेन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इज ओनली that much rules required to convert the block diagrams into signal flow graphs. Let us now convert an actual block diagram into a signal flow graph. Let us start with a smaller, simpler block diagram. This is a block diagram for a feedback connection. All of you know that we have used it several times. Now let us convert the given block diagram to a signal flow graph. Now what is mentioned here in first statement? What is mentioned here? It is said that, yes, it is said that represent all the signals variables by nodes. Okay, जितने भी वेरिएबल्स है, सिग्नल्स है, समिंग पॉइंट्स है, उसको क्या करो, नोड से रिप्रेजेंट करो। ओके, सो यहाँ पर कितने सिग्नल्स है, चलो पहले तो मैं समिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड द समिंग पॉइंट्स एंड टेक ऑफ पॉइंट. सो देयर इज वन समिंग पॉइंट, देयर इज अ टेक ऑफ पॉइंट, ओके, and there are two signals present here. First one is input, that is your reference signal R of S, and second one is C of S. Okay, this is also a feedback signal, but it is again coming on the similar point. So this one R of S and this one C of S are two signals, so there will be two nodes for them. Then there is a summing point and there is a takeoff point. So for a summing point there will be one node, and for a takeoff point there will be another node. Okay, so in this way there will be four different nodes present here, one for RS, one for CS, one for summing point, one for takeoff point. Okay, now there is a block present between this summing point and this takeoff point, that is G of S. It is the transfer function of this block. So this block will be represented by a branch. That means there will be a straight line branch between your summing point and takeoff point, and its gain will be the transfer function of this block G of S. Okay, then there is a feedback element present here, H of S, between this takeoff point and then this summing point. So there will be a branch between this, in between this, and its gain will be H of S, or you can say H with a negative sign because this is a minus sign here. Okay, so let us now convert the diagram to a signal flow graph. Now I'll simplify it. Before proceeding to it, I'll just simplify it. So this is your summing point 1, this is your takeoff point 1, this is a signal RS, this is CS signal HS, the feedback element transfer function, the GS, the original gain transfer function. So we add a branch from RS to S1. There will be a branch between node RS and node S1. Since there is no block present in between them, therefore we will use 1 as the gain of this branch. Similarly, in between T1 and CS, in between node T1 and node CS, there is no block present, so therefore the gain of this branch will also be 1. So first of all, in simplification, first of all draw, जब आप इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में सिंप्लीफाई कर रहे हैं
तो इसको क्या कीजिए कि सबसे पहले इसमें जितने भी नोड्स है वो नोड्स ड्रॉ कीजिए. ओके, सो आई ड्रॉ द नोड्स हियर. आई ड्रॉ द नोड्स हियर. ओके, सो node RS, node S1, node T1, node CS. So there are 4 nodes, one node for RS, one node for CS. Then this RS is connected with S1 with a branch. Okay, so it will be connected with a straight line. Then the direction of this branch will be forward because the signal is going forward in forward direction. So I'll first of all I'll connect the various branches to its respective nodes. So RS is connected in between, RS and S1 is connected with this branch. Then S1 and T1 is connected with this branch which is having a block in between them. So there will be some gain in between them. Then this T1 is connected between CS. There is connection between T1 and CS. So T1 और ये CS connect हो जाएंगे with a branch, and this T1 is connected with S1. So ये T1 S1 के साथ रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट होगा. तो जो भी रिवर्स रहेगा, जो भी बैकवर्ड रहेगा, इट विल बी ड्रॉन हियर. ओके, सो इस तरीके से मैं उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ. सो जो भी डायरेक्शन है वो निकाली जाएंगी, यहाँ पर एरो दिए जाएंगे. ओके, विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ एरोज. So this is forward direction R of S, and S1 is connected in forward direction. Then S1 T1 forward, T1 CS forward, T1 S1 reverse direction. Now I'll write the gains of these branches. So gain for this first branch is 1, since there is no block present here. कोई भी ब्लॉक नहीं है, इसके लिए उसका गेन 1 है. इनके बीच में भी कोई भी ब्लॉक नहीं है, इसके लिए उसका भी गेन 1 है. देन G of S, उसके लिए जो गेन है वो उससे G है, तो ये G यहाँ पर मैंने लिख दिया. और H of S के लिए समझो H1 उसका गेन है, तो वो H1 मैंने लिख दिया. सिंस दिस इज माइनस, सो इसके लिए इसको माइनस साइन के साथ मैंने लिखा. सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम इनटू ए सिग्नल फ्लो ग्राफ. तो सबसे पहली चीज़ कीजिए कि नोड आइडेंटिफाई कीजिए. दूसरी चीज़ कितने ब्लॉक्स हैं, मतलब कितने ब्रांचेस बनेंगे, वो आइडेंटिफाई कीजिए. तीसरी चीज़ इन ब्रांचेस के गेन्स कितने हैं, या कौन से गेन्स कहाँ पर आएंगे, और उसकी साइंस कैसे रहेंगे, डायरेक्शंस कैसे रहेंगे इन ब्रांचेस के, ये फाइनलाइज कीजिए. एंड देन ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ. सो लेट अस कन्वर्ट द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम इनटू इट्स इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ. इसके इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में इसको क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डायग्राम. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स डायग्राम इज हैविंग नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस, नंबर ऑफ समिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ टेक ऑफ पॉइंट्स. सो फर्स्ट आई विल फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स. सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं वो फाइंड आउट करूँगा. ओके, सो जो RS है मतलब इनपुट सिग्नल एक नोड हो गया, आउटपुट सिग्नल दूसरा नोड हो गया. इन बिटवीन समिंग पॉइंट एक है, तो ये तीसरा नोड, ये दूसरा समिंग पॉइंट है, तो ये चौथा नोड. उसके बाद में ये दोनों भी गेन्स जो है इनके बीच में एक नोड मुझे यूज़ करना है, बिकॉज जो भी हमारे गेन्स है इनके बीच, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या रहेगा, एक नोड प्रेजेंट रहेगा. देन नेक्स्ट वन इज दिस टेक ऑफ पॉइंट. ये टेक ऑफ पॉइंट है, इसके बीच में ये भी एक नोड है. सो ये RS एक, ये Y of S दूसरा, ये Y1 तीसरा, ये Y2 चौथा, ये Y3 पांचवा, ये Y4 छठा, ये समिंग पॉइंट एक और आ गया, ये सातवां, ये टेक ऑफ पॉइंट एक आ गया, ये आठवां, ये और एक समिंग पॉइंट आ गया, ये नौवां, और ये Y of 8 एक आ गया, ये 10वां, और ये Y9 जो टेक ऑफ पॉइंट है, ये दो टेक ऑफ पॉइंट है, ये आ गया 11वां. तो ऐसे कुल मिला के मेरे 11 नोड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि Y3 क्यों लिया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस
ये दोनों ब्लॉक के बीच में हमको क्या करना है कि एक नोड कंसीडर करना है। ओके, इसके बीच में क्या कंसीडर करना है, हमको एक नोड कंसीडर करना है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। G1 G2 एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनके कनेक्शंस को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक नोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एक नोड आ गया सीरीज कनेक्शन के लिए। ओके, सो अभी कुल मिला के मेरे 11 नोड्स है। ओके, अब 11 नोड्स के बाद में मुझे दूसरी चीज़ क्या आइडेंटिफाई करना है, ब्रांचेस कितने हैं। तो ये G1 एक ब्रांच है, ये G2 एक ब्रांच है, ये H1 एक ब्रांच है, H2 एक ब्रांच है, H1 H2 एक ब्रांच, 2 ब्रांचेस हो गई। तो ऐसे 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स है, तो 8 ब्लॉक्स के लिए 8 ब्रांचेस तो हो जाएंगी। साथ ही साथ में जो ये RS और ये Y1 के बीच में एक कनेक्शन है, तो ये एक ब्रांच हो गई, ये 8 9 हो जाएंगे। उसके बाद ये Y9 और YS के बीच में जो एक ब्रांच रहेगी ये एक हो जाएंगी, तो ये 10 हो गए। फिर ये इसके बाद में और कहाँ पर रहेगा, दिस वन विल ऑल्सो ए ब्रांच Y1 Y2 के बीच में, Y2 Y3 के बीच में एक रहेगी, Y3 Y4 के बीच में रहेगा, Y5 Y6 के बीच में रहेगा। ओके, Y7 Y8 के बीच में एक ब्रांच रहेगा। ओके, देन Y8 Y9 के बीच में तो ये ब्लॉक ऑलरेडी आ चुका है। सो ऐसे नंबर ऑफ ब्रांचेस इसके अंदर प्रेजेंट है। सो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ कि आई विल रिप्रेजेंट द इनपुट सिग्नल्स एंड आउटपुट सिग्नल ऑफ ब्लॉक डायग्राम एज इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड। इनपुट नोड और आउटपुट नोड बोल के मैं ये RS और YS सिग्नल का इस्तेमाल करूँगा। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 ये जो 9 तक लिखे हैं, ये सभी नोड्स मैंने डायग्राम पे ही निकाले हैं फॉर रेफरेंस एंड फॉर सिंप्लीफिकेशन। देयर आर 9 नोड्स अदर देन इनपुट एंड आउटपुट नोड्स। सो ये इनपुट आउटपुट को पकड़ के 11 टोटल नोड्स है। तो सबसे पहली चीज जब मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ द नोड्स। ओके, 11 नोड्स 1 by 1। इसमें से 4 जो है तो वो समिंग पॉइंट के हैं, 4 नोड्स जो है वो टेक ऑफ पॉइंट के हैं, एंड 1 नोड फॉर वेरिएबल बिटवीन G1 एंड G2, इसके बीच के वेरिएबल के लिए, बिकॉज देयर इज अ वेरिएबल प्रेजेंट इन बिटवीन देम, so we will consider there one node there, and therefore it is present there. So 4 plus 4 8 plus 1 9, so ये 9 और ये RS और CS के ऐसे कुल मिलाकर 11 नोड्स मुझे पहले तो ड्रॉ करना है। सो मैं ये रेफरेंस के लिए डायग्राम बाजू में रखूँगा ताकि कनेक्शंस मुझे आसानी से समझ में आए। सो आई विल फर्स्ट ड्रॉ द नंबर ऑफ नोड्स। तो ऐसे 9 नोड्स मैंने स्ट्रेट लाइन में बना दिए। ओके, सो यहाँ पर Y1 से लेके Y9 तक RS और CS इनके 2 सेपरेट नोड्स मैंने निकाला। अब मैं इस डायरेक्शन से कनेक्शंस या ब्रांचेस जो है वो बनाना शुरू करूँगा। आई विल स्टार्ट टू कनेक्ट दीज नोड्स विथ देयर रिस्पेक्टिव नोड्स। ओके, सो दिस RS इज कनेक्टेड विथ Y1, सो RS और Y1 के बीच में एक नोड आ जाएगा, सॉरी एक ब्रांच आ जाएगी। एंड सिंस there is no block present in between them, so its gain will be 1 and the direction will be forward. So मैं क्या करूँगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक ब्रांच निकालूंगा और उसके ऊपर गेन उसका 1 लिख दूंगा। ओके, देन आई विल मूव ahead now. So right now I started with RS. Now next I will move to the next node, Y1 node. Okay, so Y1 is connected with Y2, Y1 is connected with this Y8. Now for simplification, for starting, for just practicing, I will consider this feedback elements or these feedback connections later on. मैं इसको बाद में consider करूँगा, बाद में इसको connect करूँगा। First of all I will draw the all the forward paths. जितने भी forward path रहेंगे, जितने भी forward connections रहेंगे, forward signals रहेंगे, उसको मैं क्या करता हूँ, पहले ड्रॉ करता हूँ। ये जो बैकवर्ड्स है ये बाद में हम ड्रॉ करेंगे, बट Y1 जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सो देयर इज वन कनेक्शन बिटवीन Y1 एंड Y2। ओके, Y1 नोड Y2 के साथ में कनेक्टेड है, नो ब्लॉक प्रेजेंट देयर, सो देयर विल बी 1 गेन फॉर इट एंड देयर विल बी अ फॉरवर्ड ब्रांच इन बिटवीन देम, एज वेल एज ये Y1 जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो इसका भी गेन H2 यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ में ये प्लस साइन है तो प्लस H2 रहेगा, बस कनेक्शन विल बी बैक।
बैकवर्ड। ओके, सो ये बाद में मैं निकालूंगा, पहले तो फॉरवर्ड में चलते हैं। सो y1 नोड कंप्लीट हो गया, y2 नोड पे आ जाते हैं। सो y2 नोड पे जब मैं देखता हूँ तो y2 इज कनेक्टेड बिटवीन y2 एंड y3, देयर इज अ ब्रांच बिटवीन y2 y3, सो आई विल कनेक्ट y2 y3 with a branch, as well as there is a block present here in between y2 y3, so I'll write its gain over the branch। तो मैं गेन g1 को यहाँ पर लिख दूंगा और इसकी ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अगेन y2 इज कनेक्टेड विद दिस फीडबैक एलिमेंट, y4 से वो कनेक्टेड है, सो वो बाद में हम निकालेंगे। देन y3 y4 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सो y3 y4 के बीच में एक कनेक्शन है और उसके कनेक्शन के बीच में क्या है, मेरा एक ब्लॉक प्रेजेंट है। सो y3 y4 विल बी कनेक्टेड विद अ फॉरवर्ड ब्रांच एंड विद अ गेन g2 से मैं क्या कर दूंगा, उसको कनेक्ट कर दूंगा। देन नेक्स्ट नोड पे जाते हैं, y4 नोड हो गया, y4 के बाद में y5 नोड आ रहा है। सो y4 और y5 के बीच में भी कनेक्शन है, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है दैट इज कनेक्शन। सो y4 y5 कनेक्ट कर देंगे। ओके, कनेक्ट करने के बाद में मैं देखता हूँ कि इनके बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं है, इसके लिए उसका गेन क्या रहेगा, 1 रहेगा। देन y5 y6 पे जाते हैं, y6 पे जाने पर देखता हूँ कि मैं y5 और y6 के बीच में एक ब्रांच है, बट सिंस देयर इज नो ब्लॉक इन बिटवीन देम, सो इट्स गेन विल बी 1 एंड द डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड। अगेन y6 से y7 की तरफ जाते हैं, y7 और y6 के बीच में एक गेन प्रेजेंट है, एक ब्लॉक प्रेजेंट है g3। ओके, एंड इट इज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो y6 एंड y7 को मैं g3 गेन के साथ लिख देता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगेन आई ऑब्जर्व हियर दैट देयर इज अनदर ब्लॉक प्रेजेंट इन बिटवीन y6 एंड y6 और y7 के बीच में ये तो है ही है, साथ में ये ऊपर से जो एक कनेक्टेड है g4 ब्लॉक वो भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स y7 इज डिपेंडेंट ऑन दिस y6 फ्रॉम g3 एंड g4 ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है। सो देयरफॉर नाउ सिंस आई हैव कनेक्टेड विथ अ स्ट्रेट लाइन, now I have to use another line to connect this y6 with y7. Now I cannot draw straight line in between them since it is used for g3 block और g3 गेन के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। मैं क्या करता हूँ, एक कर्व लाइन से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ y6 और y7 को। So I'll connect it with a curve line with a forward path के साथ में with a gain of g4. Okay, so g4 गेन उसके बीच में आ जाएगा। So this is both, ये दोनों भी यहाँ पर आ गए गेन्स। देन y7 एंड y8, ये y7 है समिंग पॉइंट, ये टेक ऑफ पॉइंट y8 है, तो इनके बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो इसको गेन 1 से क्या करो, कनेक्ट करो। देन y8 एंड y9, उनके बीच में एक गेन है g5, तो उसको g5 गेन लिख के फॉरवर्ड ब्रांच से क्या करो, कनेक्ट करो। एंड एट लास्ट दिस y9 will be connected with y of s, or you can say c of s. So I'll connect it directly with the output node c of s or y of s, and with a gain of 1 because there is no block present in ys and y9. Okay, now let us start to connect the feedback elements or the backward branches. So y4 पहली ब्रांच पे जाते हैं, पहली ब्रांच h1 है, h1. Okay, so h1 is connected between y4 and y2. so y4 और y2 के बीच में रिवर्स डायरेक्शन में एक आपको क्या बनाना है, लाइन बनाना है। तो ये रिवर्स डायरेक्शन वाली लाइन कैसी रहेगी, कर्व रहेगी। ओके, विद अ बैकवर्ड डायरेक्शन, और उसका गेन क्या रहेगा, इट विल बी -h1। सो ये y4 से मैंने एक लाइन बनाया रिवर्स डायरेक्शन में, y2 को कनेक्ट किया, उसका गेन है -h1। ओके, सिमिलरली ये h2 है, h2 इज कनेक्टेड बिटवीन y8 एंड y1। सो y8 से एक रिवर्स डायरेक्शन में एक ब्रांच क्रिएट होगी एंड इट विल बी कनेक्टेड विथ y1 विथ ए गेन ऑफ +h2। सो ये +h2 वाला आ गया। एंड सिमिलरली दिस y9 विल बी कनेक्टेड विथ y5। सो ये y9 और ये y5 को कनेक्ट करेंगे हम, से ऊपर से है तो ऊपर से ही निकालेंगे, एंड इट विल बी -h3
gain. Okay, so this is the way you represent the signal flow graph of a block डायग्राम. ओके, एक ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ से कैसा रिप्रेजेंट करना है, सो इट इज गिवन हियर. ओके, now in order to calculate the transfer function of this whole signal flow graph, we have to use certain formula, and that formula is Mason's gain formula. And with the help of this Mason's gain formula, in next lecture, in next video,